کا نام صفحے ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کون سی 3 چیزیں، تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف حکومت لگ جائے اس کا نام صفحے ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ کسی کے خلاف پیسہ خرچ کر دیا جائے اس کا نام صفحے ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے اس کا نام بھی صفحے ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اب آگے لکھتا ہے گبن کہ میں نے جب تاریخ اسلام پڑھی تو یہ تینوں چیزیں علی کے پیچھے پڑی رہی، حکومت بھی، جھوٹا پروپیگنڈا بھی، اور پیسے بھی خرچ کیے گئے۔ 70,000 ممبروں سے مولائے کائنات کو برا کہلوایا گیا۔ یہ تینوں چیزیں علی کے پیچھے پڑی رہی، مگر رائٹر گبن لکھتا ہے یہ تینوں چیزیں پیچھے تو پڑی رہی مگر علی کا کچھ بگاڑ نہ پائی، مگر علی کا کچھ بگاڑ نہ پائی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ علی کی شان ہی ہے، یہ جملہ آئے گا نہ جائے، علی کی شان ہی یہی ہے، علی کی منزلت ہی یہی ہے کہ جب وہ 3 کچھ نہ بگاڑ پائے تو یہ 3 کیا آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو اس وقت تک نبی بنایا ہی نہیں گیا جب تک کہ اقرار ولایت علی نہ کروا لیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو اس وقت تک نبی بنایا ہی نہیں گیا جب تک کہ اقرار ولایت علی نہ کروا لیا۔ اس کی دلیل سنتے چلیے۔ نبی کہتے ہیں عربی میں خبر دینے والے کو، اور نبا کہتے ہیں عربی میں خبر کو۔ جیسے اردو میں خبر ویسے ہی عربی میں نبا کہتے ہیں خبر کو، اور خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اب کیوں نہیں بنتا کوئی نبی بغیر ولایت علی کے؟ سنتے چلیے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ اب قرآن مجید میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ آدم کے سجدے کی خبر قرآن میں، ابلیس کے جھگڑے کی خبر قرآن میں، نوح کے سفینے کی خبر قرآن میں، ابراہیم کے آگ میں جانے کی خبر قرآن میں، عیسیٰ کے بولنے کی خبر قرآن میں، موسیٰ کو کوہ طور پہ باتیں کرنے کی خبر قرآن میں۔ قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں، مگر قرآن کو قرآن نبا نہیں کہا گیا، خبر والا قرآن نہیں کہا گیا، بلکہ قرآن مجید کہا گیا، پڑھا ہوا قرآن کہا گیا۔ اب اس میں قرآن کو قرآن نبا تو نہیں کہا گیا، مگر ایک سورہ ہے جس سورے کو سورہ نبا کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت پڑھیے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے عظیم خبر کیا ہے، سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ میری طرف متوجہ ہے، قدیر پہ لے کے آ رہا ہوں۔ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ جنگ صفین میں ایک حافظ قرآن علی کے مقابلے میں نکلا۔ اب جملہ چاہیے سے سنیے گا، حافظ قرآن علی کے مقابلے میں نکلا۔ کیا تماشا ہے، قرآن پڑھ کے قرآن کے مقابلے میں نکلا، قرآن پڑھ کے قرآن کے مقابلے میں نکلا۔ قرآن پڑھتا ہوا میدان میں آیا، علی نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا قرآن میں کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن میں سورہ نبا پڑھ رہا ہوں۔ کہا سورہ نبا میں کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ علی مسکرائے، کہا تجھے بھی کچھ خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ تجھے بھی کچھ خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی میں نہیں جانتا۔ علی نے اپنے سینے کی طرف دیکھا، فرمایا واللہ عن النبأ العظیم، خدا کی قسم میں ہی سب سے بڑی خبر ہوں۔ ہر نبی آیا خبر دینے کے لیے، سب سے بڑی خبر ہے علی، سب سے بڑی خبر ہے علی۔ اگر سب سے بڑی خبر نہ ہوتی تو اللہ سب سے بڑے نبی سے یہ نہ کہتا پہنچا دیجئے، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ کیا، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ کیا۔ سب سے بڑی خبر کون ہے؟ علی۔
جب ہر نبی آیا خبر دینے کے لیے، بہت متوجہ ہو کے سنیے گا، میں منزل پہ لا رہا ہوں، جب سب نبی خبر دینے کے لیے آئے تو یہ نبی کو معراج پہ کیوں بلایا گیا؟ اب قرآن کہتا ہے قد ارا فی آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کو آسمان پر آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کرنے کے لیے بلایا گیا۔ آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت یعنی سب سے بڑی نشانی، آیت کہتے ہیں نشانی کو، اللہ کی نشانی آیت اللہ کی نشانی کو دکھانے کے لیے بلایا۔ جب پہنچے تو پردے کے پیچھے سے ہاتھ برآمد ہوا، انگوٹھی جانی پہچانی تھی، پردے کے پیچھے سے آواز آئی انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ تو کون تھا پردے کے پیچھے؟ شیعہ حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں، ان کی زبان پہ رہتا ہی علی علی ہے، تو جو شیعوں کی زبان پہ علی علی ہے تو معراج کے پردے کے پار بھی علی علی ہے۔ معراج کے پردے کے سب سے بڑی خبر کون؟ علی۔ سب سے بڑی نشانی کون؟ علی۔ میرے ساتھ ذرا مل کے بولیے بآواز بلند، اس لیے کہ مولا کائنات کا نام ہے۔ میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، علی کا نام لینے میں وہ شرمائے، اپنے پیر کا نام لینے میں وہ شرمائے کہ جس کا پیر کسی میدان سے بھاگا ہو۔ آپ کو تو علی نے ہر جگہ سربلند رکھا ہے۔ میں عرض کر چکا جملہ، لیکن آج کا چہرے کھل رہے تو جملہ سنتے چلیے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے لاپتہ کو مانا ہے، لاپتہ کو نہیں مانا۔ سنا نوجوان بھائیوں، سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی علی، سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی علی۔ قانون یہ ہے کہ خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ میں کون پہنچا کون نہیں پہنچا، خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں پالان شتر کے ممبر پر نبی ایک ساتھ 2 چیزیں پہنچا رہے تھے، نباء العظیم بھی پہنچا رہے تھے، آیت اللہ کی زیارت بھی کروا رہے تھے۔ صلوات پڑھے نا ولایت علی کی اہمیت گھٹانے والوں نے کیا معلوم کہ ولایت امیر المومنین کیا ہے؟ سنیے، ولایت امیر المومنین کیا ہے؟ مسجد النبوی ہے، بھرا ہوا صحابیوں سے مجمع ہے۔ نبی نے علی کو دیکھا، یا علی میرے قریب آؤ، علی قریب آئے، کہ یا علی ذرا اور قریب آؤ، علی اور قریب آئے۔ آواز دی نبی نے، تم کو ہم سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ اس نے کہا، نبی نے، تم کو ہم سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ نبی نے علی کو اپنا سر کہا۔ 16 رجب کا موقع آیا، مکے والوں نے پوچھا، جو خدا کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کی آنکھیں کیسی، اس کا چہرہ کیسا، اس کے ہاتھ کیسے؟ نبی خاموش ہوئے تو آواز قدرت آئی، اے نبی بولتے کیوں نہیں؟ جس کے گھر میں آیا ہے بچہ اسی میں پڑا ہے، تو جواب کیا دوں؟ کہہ دو اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے۔ دیکھیے، نبی نے کہا علی ہمارا سر، 16 رجب کو اللہ نے کہا علی ہمارا چہرہ۔ چہرہ سر کے بغیر ہوتا نہیں، سر چہرے کے بغیر ہوتا نہیں۔ چاہے چہرے کو سر کہیے یا سر کو چہرہ کہیے، بات ایک ہی ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہم آپ کا سر اتار دیں گے تو اسے آپ دوست مانیں گے دشمن مانیں گے؟ دشمن مانیں گے نا، قاتل کہلائے گا سر اتار دیا۔ یعنی بدن سے سر کو الگ کرنے والا قاتل کہلاتا ہے، دشمن کہلاتا ہے۔ بہت متوجہ ہو کے سنیے گا،
नबी का भी सर अली, अल्लाह का भी सर अली। जुमलों को पलटूं, तौहीद के भी सर को अली कहते हैं, रिसालत के भी सर को अली कहते हैं। और आसान जुमला करूं, ला इलाहा इल्लल्लाह के सर को भी अली वलीउल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी सर को अली वलीउल्लाह कहते हैं। अब जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह से अली वलीउल्लाह को हटाए वो तौहीद का भी दुश्मन है। क्यों बने? तो शैतान बहका रहा है। उन्होंने कहा विलायत अली से बहका, तो मैंने कहा जी हाँ। उसने क्या कहा था आसमान पे, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, तेरे नेक और साले बंदों को बहकाऊंगा। तलाश करिए सिराते मुस्तकीम क्या है, ढूंढिए सिराते मुस्तकीम क्या है। मशहूर वाक़िया, नबी मिंबर पर एक सहाबी खड़ा हुआ, मा हाजा सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने कहा बैठ जाओ। फिर खड़ा हुआ, मा हाजा सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम क्या है? कहा बैठ जाओ। फिर खड़ा हुआ, मा हाजा सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम क्या है? कहा बैठ जाओ। अब मस्जिद के दरवाजे पे नजर आ गए अली। तो जुमलों को बदलूं, रिसालत ने इमामत को देखा और कहा पूछो क्या पूछते हो? और उसने कहा मा हाजा सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी मुड़े, अली को देखा। जुमला फिर बदलू, शायद लुत्फ आ जाए जुमले पर। रिसालत ने वजहुल्लाह की जियारत की और कहा क्या पूछते हो? कहा हाजा सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने अली को देखा और कहा हाजा अलीउन सिरातुल मुस्तकीम, ये अली है सिराते मुस्तकीम। शैतान ने क्या कहा था? मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा और नेक और साले बंदों को बहकाऊंगा। नौजवानों जुमला लाएगा ना जाए। नबी ने फरमाया अली है सिराते मुस्तकीम, अली है सिराते मुस्तकीम। ये मुझे पता चल गया कि शैतान ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वलीउल्लाह से रोकता है। और जो भी विलायत अमीरुल मोमिनीन का दुश्मन है वो हारिस से सबक सीख ले। हारिस से सबक सीख ले, जब उसने विलायत का इनकार किया उसने कहा परवरदिगार अजाब भेज दे। हारिस ने अपने ऊपर अजाब मंगवा के बता दिया कि अगर विलायत के दुश्मन हो तो जिंदा रहने का हक नहीं है, मर जाने का हक है। सलावत पढ़े ना सलवात पढ़े के लगे विलायत अमीरुल मोमिनीन से हमें नहीं गैर भी फायदा उठाते हैं। फकीरों का आप देख लीजिए, वो अपने वालों के नाम नहीं लेते, अली के नाम पे दे दो, अली के नाम पे दे दो, फातिमा के नाम पे दे दो, हसन के नाम पे दे दो, हुसैन के नाम पे दे दो। मैं पहुँचा कभी फला के नाम पे भी मांग लो, कभी फला के नाम पे भी मांग लो, फला के नाम पे भी मांग लो। फकीर आवाज देगा फकीर हूँ बेवकूफ नहीं हूँ, फकीर हूँ बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे इतना मालूम है भीख भिखारियों के नाम से नहीं मिलती, जनाब अमीर के नाम ये ना हो इस्लाम
अली की विलायत के बाद बादल मसलन बादल विलायत का सिलसिला जारी रहा और आज भी वारिस पता रहेंगे। इसकी विलायत हम सब पर वाजिब है, हम सब पे उनकी इताअत वाजिब है। हमें चाहिए कि इमाम ज़माना की इताअत करें। तो इस्लाम को जिस चीज़ की भी जरूरत थी मासूमीन ने आगे बढ़ के सहारा दिया। अगर शुजात की बात आए तो मौलाए कायनात आगे बढ़े, सुलूक की बात आए तो इमाम हसन आगे बढ़े, सब्र की बात आए तो मौला हुसैन आगे बढ़े, इबादत की बात आई तो ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, इल्म की कमी हुई तो बाक़रुल उलूम आगे आए, सच्चाई कम हो गई, झूठ का इजाफा होने लगा, जाफर सादिक आगे बढ़े। यानी इस्लाम में खतरा पड़ता रहा, ये मासूमीन ने बढ़ के सहारा दिया। बस एक वाक़या सुनिए और अपने मसाइब पे आ रहा हूँ। बस आखिरी बात होगी इंशाअल्लाह छठे इमाम के हवाले से। मिस्र का एक रहने वाला शख्स था, उसने मासूमीन को देखा नहीं था, नबी आखिर को देखा नहीं था, ईमान ले आया था, इस्लाम का कलमा पढ़े हुए था। उसने गुस्से में अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी। वो आया अपना मसला लेके मदीने में। उस वक्त हुकूमत ने छठे इमाम को नजरबंद कर दिया था कि कोई इमाम से मिल नहीं सकता, कोई इमाम से मुलाकात नहीं कर सकता। हुकूमत ने उन्हें नजरबंद किया, सिपाहियों की कैद में रखा था। वो आया मदीने पहुंचा, उसने कहा वारिस रसूल कौन है? तो वारिस रसूल का इशारा लोगों ने वही बताया जो तख्त पर बैठा था मंसूर दवानी। दरबार में लाया गया, वो दरबार में आया, उसने कहा मैंने गुस्से में अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी। बहुत तवज्जो का सुने, इंशाअल्लाह आपकी समाते मिराज करूँगी। का गुस्से में अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी, इसका क्या होगा? तो उसने जो जवाब दिया उसको मिंबर से तो बयान किया नहीं जा सकता है, लेकिन आप इतना यूँ समझ लीजिए कि जवाब सुनने के बाद उसने अपनी दाढ़ी को नोचना शुरू किया और कहा हाय रे इस्लाम की गैरत, हाय मैंने किस दिन का कलमा पढ़ लिया जिसमें गैरत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये इस्लाम को बुरा भला कह रहा था और दरबार से निकल रहा था कि मैंने किस दिन का कलमा पढ़ा, किस नबी का कलमा पढ़ा, इस्लाम को बुरा भला कहता हुआ अभी दरबार से बाहर निकला था कि छठे इमाम के सहाबी ने कांधे पे हाथ रखा और कहा वारिस की पहचान तुझे नहीं, पूरा इस्लाम को कहता है। वारिस की पहचान तुझे नहीं, पूरा इस्लाम को कहता है। कौन है वारिस? हुकूमत ने नजरबंद कर दिया, कोई इससे मिल नहीं सकता, कोई उससे मुलाकात नहीं कर सकता। उसने कहा बगैर देखे यकीन मान गया कि वो सच्चा है। और से सुनिएगा मुतवज्जो होके, बगैर देखे मान गया तो वो सच्चा है। कैसे मान गए? अगर इस जैसी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है तो वो यकीनन सच्चा होगा। ऐसी हुकूमतें सच्चाई पर ही पाबंदी लगाएंगी। खुदा की कसम मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आपको इंतजार इमाम ज़माना कैसे करना है? इसने इमाम का इंतजार कैसे किया? बिल्कुल ऐसी ही तरफ होना चाहिए इमाम के इंतजार की, बिल्कुल ऐसा ही जज्बा होना चाहिए हमारे दिलों में इमाम का। कैसा जज्बा? जैसे इसने जज्बा दिखाया। 3 महीने तक मदीने की गलियों में भटका रहा, अब इमाम से मुलाकात हो, अब इमाम से मुलाकात हो, अब इमाम से मुलाकात हो, लेकिन इमाम से मुलाकात नहीं हुई। जाके मदीने के बाहर बैठ गए। तो मदीने के बाहर बैठा तो देखा एक सब्जी फरोश आ रहा है, तो टोकरी रखे हुए सर पे चला आ रहा है। उसने आवाज़ दी, क्या कहा कि सब्जी बेचने जा रहा है? कहाँ सब्जी बेचने जा रहा हूँ? कहाँ जाता है? मदीने जा रहा हूँ। क्या मोहल्ले बनी हाशिम में भी जाता है? कहाँ मैं सब्जी फरोश हूँ, हर जगह जाता हूँ। तो उसने कहा ये सब्जी मुझे बेच दो। सुनो, सिर्फ सब्जी नहीं, सब्जी भी बेच, लिबास भी बेच। इमाम की मोहब्बत में सब्जी फरोश बन गया, इमाम की मोहब्बत में सब्जी फरोश बन गया। अच्छा हुआ ज़मीन फरोश नहीं बना, सब्जी फरोश बना। ये लेके मदीने पहुंचा, मोहल्ले बनी हाशिम में आया, सिपाहियों ने रोका, जानता है कौन रहता है? मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सब्जी बेचने वाला हूँ, मुझे क्या मालूम कि अंदर कौन रहता है। तो उसने कहा अच्छा जाओ। 2 सिपाही साथ चले, ये
सब्जी बेचता हुआ इमाम के दरवाजे के पास पहुंचा। अब कदमों को आहिस्ता आहिस्ता चलाया और दिली दिल में कहा, मौला जहाँ तक मैं आ गया हूँ यहाँ से आप बुला लीजिए, जहाँ तक मैं आ गया हूँ यहाँ से आप बुला लीजिए। अभी ये थोड़ा पढ़ ही रहा था कि इमाम का साहबी दरवाजे पे आया और कहा, ठहर जा सब्जी वाले, आज मेरे मौला को सब्जी देख कर लेना है, आज मेरे मौला को सब्जी देख कर लेना। इसके दिल में खुशी मसलत रियायत हो गई। रुका, इमाम देखने की तरफ चला। सिपाही ने पूछा, जानता है कौन रहता है इस घर में? मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सब्जी बेचने वाला हूँ। जाओ। दो सिपाही साथ में चले, टोकरी को रखा सहन में। अब ये हुजरे की तरफ नजर जमाए हुए हैं। अब इमाम आए, अब इमाम आए। देखिए तड़प कैसी होना चाहिए इमाम के अंदर। अब इमाम आए, अब इमाम आए, नजर जमाए हुए। क्या देखा, एक बैक हुजरे का पर्दा हटा, अबू तालिब वाला मामा नजर आया, रसूल खुदा वाली अबा नजर आई, अपने वक्त का मोहम्मद बन के हुजरे से निकला। ये ऐसा हुस्न था चेहरे पर कि ये देखता ही रह गया, ये देखता ही रह गया। इमाम आके बैठे, आवाज की कहा, तेरी तलाक नहीं हुई, क्या तेरी तलाक नहीं हुई? उसने देखा सिपाहियों को। इमाम ने कहा, मुतमईन होके बैठ, जब तक बातें कर रहा हूँ ये नहीं सुनेंगे। मुतमईन होके बैठ, जब तक बातें कर रहा हूँ ये नहीं सुनेंगे। अच्छा, उसने कहा, मौला आपने कहा तलाक नहीं हुई, मैं मान गया, मैं से वापस जाऊंगा, लोग रवायतें पूछेंगे, कुरान की आयतें पूछेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? इमाम ने आवाज दी, काश वक्त होता तो तुम्हें रवायतें भी सुनाता, काश वक्त होता तो तुम्हें आयतें भी सुनाता, लेकिन बस इतना सुनता जा कि गुस्सा शरीयत में हराम है और हराम हालत में हलाल काम नहीं होता, हराम हालत में हलाल काम नहीं होता। ये अपनी जगह से उठा, सिपाहियों से अपने हाथों को छोड़ा, कहा, या अली मदद। सिपाहियों ने कहा, खुद भी अली का चाहने वाला है, तो इमाम से मुलाकात करने के लिए आया था, पर जुमला सुनिएगा बात तमाम हो गई। तो भी इमाम से मिलने आया था, कहा, अब मुझे जिंदगी से प्यार ही नहीं रहा, अब मुझे जिंदगी से प्यार नहीं रहा। का क्यों? का इसलिए कि उसकी जियारत हो गई जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा जाफरी पे हम लोग जाफर सादिक भी बनाया गया, जाफर सादिक का रात की तारीख के लिए आया और सजदा का दरवाजा दरवाजा गिराया गया। आपने आज दिन भर गौर किया होगा कि पूरा सादात में कितनी उदासी छाई हुई है। आप जानते हैं क्यों उदासी छाई हुई है? इसलिए कि हमारा मेहमान हमारे घरों से हमारा मेहमान हमारे घरों से रुखसत हो गया। ऐ मौला, इन पूरा सादात वालों ने पहली मुहर्रम से लेकर अब तक जो अदाकारी की है, इन सब के पुरसे को कबूल करना। मौला, अगर इनकी अदाकारी में या इनकी गिरिया में कोई कमी रह गई हो तो इन्हें माफ कर देना, अपने साल फ्री में मौका देना ताकि आप हाँ, हजारों 1400 साल के बाद करबला का ये मौजूदा है। क्या आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं? आपने देखा नहीं है कि अकबर के सीने में बच्ची है? आपने सिर्फ सुना है, आपने देखा नहीं कि अब्बास दिलावर के पास आपने सिर्फ सुना है, आपने देखा नहीं कि 6 महीने के बच्चे पर 3 भार का तीर मारा गया, सिर्फ आपने सुना है। तो उस ज़ैनब के दिल से पूछे, उसने अब्बास के कटे हुए बाजू भी देखे, सीना छिदा हुआ अली अकबर का देखा, उसने कासिम की लाश के टुकड़े देखे, उसने 6 महीने के बच्चे का लाशा देखा। उस ज़ैनब के दिल से कोई पूछे, हाँ दादाओ, गोपालपुर बिहार में
फाका शिकनी की मजलिस हो रही थी कि मौला हुसैन की शहादत ज़ाकिर हुसैन पढ़ रहे थे। तो मौला हुसैन की शहादत पढ़ के ज़ाकिर हुसैन उतरे, ज़मीन पर बैठ के बहुत देर तक रोते रहे, गिरिया करते रहे। मोमिन उठ के अपने घर चले गए। उस ज़ाकिर ने देखा कि एक ज़ईफ़ है जो बैठा हुआ सारों कतार रोए जा रहा है, कह रहा हाय अकबर, हाय कासिम, हाय ओनो मोहम्मद, हाय अब्बास दिलावर, हाय अली असगर, शहीदों के नाम लेता जाता है और रोता जाता है। ज़ाकिर हुसैन कहते हैं बहुत देर गुजर गई तो मैं उसके करीब गया, ए भाई कौन सा जुमला तुम्हारे दिल में उतर गया जो तुम अभी तक रो रहे हो, कि तुम अभी तक गिरिया कर रहे हो। उसने आवाज दी कि तूने पढ़ा है, मैं वो सुन के नहीं रो रहा हूँ, बल्कि जो तूने पढ़ा है वो मैंने अपनी आंखों से जिगर भी देखा है, मैंने अब्बास के बारे हुसैन दौड़ गए। तुम अंबिया में से होगा नहीं, मैं नबियों में से नहीं हूँ, आप इमामों में से नहीं, मैं इमामों में से भी नहीं हूँ, फिर आप कौन है? हम मुझे जाफर जिन कहते हैं। मैं करबला में उस वक्त पहुंचा, लाशों के दरमियान खड़े थे, आवाज दे रहे थे आलमीन नासरीन आजादारो करबला के मैदान में जाफर जिन का जब साया हुआ, हुसैन ने पूछा कौन? का मैं जाफर हूँ, आपका गुलाम। क्यों आए हो? मैं आपकी नुसरत के लिए आया हूँ, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आवाज से हुसैन ने क्या करेगा मदद करके, क्या करेगा नुसरत करके? सुनिए मजलूमिया हुसैन, सुनिए और बते हुसैन सुनिए, क्या करेगा मदद करके, क्या करेगा नुसरत करके? मैं तुम्हें बचा दूंगा, आपकी हिफाजत कर दूंगा। हुसैन ने कहा मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? मैंने 18 साल का करियर 25 बरस का गया था, 6 महीने का बच्चा मारा गया, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? आवाज जाफर जिन ने मुझ पर वाजिब है आपकी नुसरत करना, मुझ पर वाजिब है आपकी इताअत करना। हुसैन ने कहा मैं तुम्हें इमाम होकर हुक्म देता हूँ, चले जाओ। जाफर जिन ने जाने में ताखीर की, हुसैन ने रोके कहा जाफर जल्दी जाओ, मेरी अम्मा की सवारी आ रही है, जाफर जल्दी जाओ, मेरे अम्मा की सवारी आ रही है। बस खत्म हो गई मजलिस, अज़ादारो करबला का मैदान। हुसैन का सूखा गला शिब्र खंजर लेकर आगे बढ़ा, सरबे मारता रहा, अंबिया सर फेरते रहे। आदम ने सर को फेर लिया, नूह ने सर को फेर लिया, इब्राहिम ने सर को फेर लिया, मूसा ने सर को फेर लिया, ईसा ने सर को फेर लिया। आखिरी नबी ने कहा ऐ अली तुम जानो तुम्हारा हुसैन जाने। अली ने जब देखा मतलब अली ने ज़हरा से कहा ज़हरा तू जान, तेरा बेटा हुसैन जाने। ज़हरा आ गई, ऐ शिमर ना मार मेरे बच्चे को, मैंने इसे चक्किया पीस पीस के मैंने इसे चक्किया पीस पीस के बनाया है। ज्यादा दारों तक जुदाई होती रही, मैंने आज किया है जुमला। ये मसराइल में पढ़ता नहीं, लेकिन प्यारा मुहर्रम है। खंजर को चलाया नहीं गया, चलाने का तरीका अलग होता है, खंजर चलाने का तरीका अलग होता है। लेकिन आपने कभी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हुए देखी है? इस तरीके से खंजर को मारा गया। हुसैन आवाज खत्म कर रहा हूँ मजलिस। रो लिया आपको, गिरिया किया आपने, बस आखिरी जुमला सुनिए, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारों जब हुसैन के सरोतर में जुदाई हो गई तो जालिम आगे बढ़े, कोई हुसैन की अबा लूटता है, कोई हुसैन की कबा लूटता है। एक जालिम है जिसका नाम है जम्माल। आप खरों तक रोते हुए जाएंगे, कैसे पढ़ूं ये जुमला? जम्माल मलून वो बयान करता है जब मैं पहुंचा हुसैन के लाशे के करीब तो कोई ऐसी चीज मुझे नजर न आई जो मैं लूट सकूं। तो मैंने क्या देखा, तो हुसैन की उंगली में एक अंगूठी थी। मैंने चाहा कि उस अंगूठी को उतारूं, मगर मुझे ताखीर हो रही थी, वो अंगूठी ना उतरी। मैंने पत्थर उठाया, पत्थर पर उंगली को रखा, मैंने खंजर से उस पत्थर पर उंगली को मारा, हुसैन की अंगूठी मुबारक